Hello and welcome all students. I, your teacher, Mrs. Batul Sabowala, will be continuing with the chapter number 9, that is Heritage Management. So let's students start with the encyclopedia and history. Encyclopedia and history. Encyclopedia and history as academic exercises put stress on objectivity. Encyclopedias published in various countries and in various languages may differ in their approach because of different priorities. Their structure is influenced by national policies, ethical values and ideals. Encyclopedias can be a medium of strengthening national identity. For example, Bharatiya Samskriti Kosh, edited by Mahadev Shastri Joshi. Making knowledge in all spheres of life accessible to everybody can be one of the major drives behind the creation of encyclopedias. An inspiration to gain and spread knowledge motivates either individuals or a group of people to create encyclopedias. Hence, encyclopedias are looked upon as outstanding achievements of a society. It is the manifestation of the collective intellect and creativity of a society. जो encyclopedias है वो history related subjects में भी publish की गई है. यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में भी encyclopedias लिखी गई हैं. encyclopedia है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई है ताकि जो पढ़ने वाला हो अगर उसे इंग्लिश नहीं आती तो वो दूसरी अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं. या फॉरेन कंट्रीज़ में भी अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई है. तो यहाँ पे ये जो एनसाइक्लोपीडिया है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नेशनल पॉलिसी, एथिकल वैल्यूज़ और आइडियाज़ को बहुत इन्फ्लुएंस करता है और इससे हमारी नेशनल आइडेंटिटी जो हिस्ट्रीज़ जो रिलेटेड टू एनसाइक्लोपीडियाज़ है जो रिलेटेड टू हिस्ट्री है, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में ले लें, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जो एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं ये हमारी जो नेशनल पॉलिसीज़ है, हमारी एथिकल जो वैल्यूज़ और आइडियाज़ है उसको बहुत ही प्रभावित करते हैं. और यहाँ पे हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी के वी आर ऑल्सो समथिंग, वी आर इंडियंस एंड वी आर ऑल्सो समथिंग. जैसे भारतीय संस्कृति कोश जो है जो महादेव शास्त्री जोशी ने लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति कोश के बारे में उन्होंने बताया है ये एनसाइक्लोपीडिया के अंदर. एंड ये जो है वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी को और मजबूत बनाता है. एनसाइक्लोपीडिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर फ्रॉम एवरीवेयर इट इज़ नॉट रिलेटेड ओनली टू साइंस और जोग्राफी या हिस्ट्री, लेकिन इन ऑल स्पीयर्स हमें हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशंस देता है और ये हमें इंस्पिरेशन मिलती है इससे और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमें नॉलेज बढ़ने से हम मोटिवेटेड होते हैं कि किस तरीके से हम हमारे कंट्री को और बेटर बना सकें. एनसाइक्लोपीडिया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें कलेक्टिव हमारे इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिविटी ऑफ द सोसाइटी के लिए ये हमें हेल्प करता है. जैसे हम एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं हमें उससे नॉलेज प्राप्त होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि किस तरीके से हम जो है हमारी सोसाइटी है, हमारी कंट्री है, किस तरीके से हम उसको बेटर बना सकें. Now we shall see encyclopedias on history related subjects. Encyclopedias on history related subjects. There is a rich tradition of creating encyclopedias on history related subjects. भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश by Raghunatha Bhaskar Godbole 1876 is the earliest encyclopedia of this kind. It includes information about various individuals and places in ancient India. According to the editor, those individuals who lived in Bharatvarsh earned a name for themselves and were part of us, along with their women, their sons, their religions, their lands and capitals, also the rivers and mountains in their lands. Whatever their history is given in this encyclopedia.
23 volumes of Maharashtra Gyan Kosh, edited by Sridhar Venkatesh Ketkar, are available. The major drive for Ketkar in creating it was to facilitate wider access to knowledge and to expand the intellectual sphere of Marathi-speaking people. His was far-reaching view of history, which is reflected in these volumes. Bharatvarshya Charitra Kosh is another important encyclopedia. Siddheshwar Shastri Chitrav established a committee known as Bharatiya Charitra Kosh Mandal for publishing this encyclopedia. 3 volumes were published, namely Bharatvarshya Prachin Charitra Kosh 1932, Bharatvarshya Madhya Yugin Charitra Kosh 1937, and Bharatvarshya Arvachin Charitra Kosh 1946. The first volume includes information on the lives of individuals mentioned in the Vedic literature, including Shruti, Samruti, Sutras, Vedangas, Upanishads, also Puranas, Jain and Buddhist literature. Similarly, other 2 volumes contain biographies of individuals in the respective periods. अगर हम एनसाइक्लोपीडिया हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, जिसे रघुनाथ भास्कर गोडबोले ने लिखा है इन 1876 के अंदर, ये सबसे पहली एनसाइक्लोपीडिया है रिलेटेड टू हिस्ट्री। यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशंस दिए हैं जैसे इंडिविजुअल्स के बारे में, जो अलग अलग प्लेसेस जो पहले के ज़माने में जहाँ पे रहते थे। यहाँ एडिटर ने, अकॉर्डिंग टू द एडिटर अगर हम देखें तो यहाँ पे भारतवर्षीय, वह भारतवर्ष मतलब जो भारत में रहते हैं उनके नाम, उनके जो वुमेंस उनके साथ रहते थे, उनके बच्चे रहते थे, उनके जो रिलीजन थे, उनकी जो लैंड थी, उनके जो कैपिटल्स थे, उनके जो माउंटेन्स थे, उनके जो रिवर्स थे, उनके पूरे हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे ये एनसाइक्लोपीडिया में दिया गया है ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम। अगर हम आगे इसके बारे में देखें, अगर हम दूसरे एनसाइक्लोपीडिया के बारे में देखते हैं जैसे महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश, अगर उसके बारे में हम देखते हैं तो यहाँ पे 23 वॉल्यूम्स मतलब 23 बुक्स है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसे करके 23 बुक्स है। यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे जो एडिटर है यहाँ पे श्रीधर वेंकटेश केटकर, यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है ये, और केटकर ने यहाँ पे और ज़्यादा नॉलेज दिए गए हैं और मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए, क्योंकि ये जो महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश जो बुक है ये मराठी में लिखी हुई है ताकि मराठी स्पीकिंग पीपल को उनको बेटर समझ में आए कि ये एनसाइक्लोपीडिया में क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये वॉल्यूम्स अलग अलग जो हमारी पहले की जो हिस्ट्री, फार रीचिंग व्यू ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे उनके बारे में ये रिफ्लेक्ट करता है, ये हमें दर्शाता है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये जो एनसाइक्लोपीडियाज़ है विच आर रिलेटेड टू हिस्ट्री, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको आ सकता है कि एनसाइक्लोपीडियाज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बताइए, और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट और लिस्ट द एनसाइक्लोपीडियाज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो हियर यू कैन गिव द नेम्स एंड यू कैन गिव लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। Now the next encyclopedia that we are going to look out related to history, that is भारतवर्षीय चरित्र कोश। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया है। भारतीय चरित्र कोश मंडल, एक मतलब सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव ने एक कमेटी बुलाई थी जिसका नाम दिया था भारतीय चरित्र कोश मंडल, और उन लोगों ने ये बिल की एनसाइक्लोज लिखी हुई थी। यहाँ पे उनके 3 वॉल्यूम हैं। जो पहला है वो है भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश, प्राचीन मतलब अबाउट एंशिएंट, ये पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1932। दूसरा जो है वो है भारतीय वर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश, मतलब अबाउट इंडिया विच इज़ रिलेटेड ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम, इट वॉज बीन पब्लिश इन द ईयर 1938। एंड द थर्ड वन, जो थर्ड वॉल्यूम था वो है भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश, मतलब अबाउट द मॉडर्न टाइम। ओके, it was been published in the year 1946. You can see in this picture it has been there, Bharatiya Charitra Kosh
मंडल हैज़ बीन राइटिंग इट डाउन. इफ़ वी सी द फर्स्ट वॉल्यूम, जो पहले वॉल्यूम के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे वैदिक लिटरेचर भी, यहाँ पे बहुत सारा लिटरेचर जो है उसके बारे में लिखा हुआ है. वैसे ही मध्ययुगीन एंड अर्वाचीन के बारे में अगर देखेंगे तो मेडिवल टाइम में जो रूलर्स थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे, उनके बारे में लिखा गया है. और मॉडर्न टाइम के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, उनके बारे में लिखा गया है. तो इस तरीके से इफ़ वी वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट इंडिया, सो दिस एनसाइक्लोपीडियाज विल हेल्प अस आउट. नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट. Do you know some special encyclopedias? 1. संगीत शास्त्रकार व कलावंत यांचा इतिहास लक्ष्मण दत्तात्रय जोशी. 2. क्रांतिकारांचा चरित्रकोश by S.R. Date. It contains biographies and illustrations of about 250 Indian revolutionaries. 3. Swatantra Sainik Charitrakosh by N.R. Phatak. It contains the biographies of those who suffered corporal punishment, imprisonment, and those who devoted their life for independence movement. इसके अलावा भी बहुत सारे एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं जो हमें हिस्ट्री से रिलेटेड करवाती हैं, जैसे संगतेश शास्त्रकर व कलावंत यांचा इतिहास. देन वी हैव क्रांतिकारांचा चरित्रकोश एंड देन वी हैव स्वतंत्र सैनिक चरित्रकोश. मतलब यहाँ पे हमें जो संगीत शास्त्र जो है उनके बारे में हमें उनके बारे में इतिहास इटसेल्फ मीन्स हिस्ट्री. ओके, यहाँ पे क्रांतिकारी जो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, द रिवॉल्यूशनरीज, अबाउट 250 इंडियन रिवॉल्यूशनरीज. द encyclopedia is been written about that, it having the biographies and illustrations of 250 Indian revolutionaries who had been fighting for India. And then about the Swatantra Sainik चरित्रकोश एक दूसरा एक एनसाइक्लोपीडिया है जहाँ पे जो the people who have been there, who had devoted their life for the independence of India, वो लोग जो या तो पनिश किए गए थे बाय द ब्रिटिश पीपल गवर्नमेंट, या जिनको इम्प्रिजनमेंट मिली थी, या वो लोगों के बारे में बताया गया है जो ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जब इंडियन नेशनल स्ट्रगल चल रहा था इंडिया के अंदर, तो उन बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा गया है, उनके इतिहास के बारे में पूरा लिखा गया. बिकॉज नॉर्मली व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री वी डू नॉट स्टडी ऑल द रिवॉल्यूशनरीज. हम कुछ जो सिलेक्टिव होते हैं वही स्टडी करते हैं, लेकिन जो लोगों ने इंडिया के लिए अपनी जान दी है, जैसे इंडिया के लिए उन्होंने अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया है, उनके बारे में ये सब इंफॉर्मेशंस ये एनसाइक्लोपीडियाज़ में आपको मिल सकती है. सो विद दिस स्टूडेंट आई एंड माई वीडियो ओवर हियर. The next part that about the other encyclopedias, we shall be doing it very soon in the next video. Thank you, students.